the directors from the perspective of independent non-executive directors or INADs. So starting from the first thing that when we talk about the individual directors, the important thing is that what is the importance of having the directors on the board? We have already discussed it. What do you think? Why it is important to have directors on the board or to have the board of Sir, directors? one option could be that there will be collective opinion making at one forum. सर वहाँ पे आपको मुख्य लोगों की opinion ली जाती है और एक Okay, very right. We can have collective opinion of the people at one forum. That's why we need the board of directors. Fair enough. Anything else, see? Anyone else? सर डिसीजन मेकिंग में जो है वो कलेक्टिवली होंगे तो वो सारे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बेयर करेंगे और फिर जो भी पॉलिसी मेकिंग है उस पे वो जो डिसीजन करेंगे वो सारा कलेक्टिवली होगा और उसके प्रोज एंड कॉन्स सारे देख के करेंगे। फिर अगर कोई डायरेक्टर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसी इंस्टीट्यूशन को या किसी और को रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो उसके अपने इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करेगा और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है फिर ओनर है, अगर कोई ओनर है तो उसको भी वो उसके इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करेगा। तो देयर आर मैनी जो है ना बेनिफिट्स कुड बी ऑफ दी, ये जो डायरेक्टर्स हैं इनकी इंपॉर्टेंस को आप निगेट या डिनाई नहीं कर सकते सर। ठीक है जी, हमने स्टार्ट में डिस्कस किया था एट द स्टार्ट ऑफ दिस कोर्स दैट देयर इज अ बेसिक रिक्वायरमेंट टू हैव द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है उसमें वो क्या था? कोई एजेंसी थ्योरी से रिलेटेड कुछ लिंक बात थी? So they are actually the agents of that company, or they are responsible or in charge of the management of that company. और उसके अंदर they are supposed to take the decisions, strategic decisions or operational decisions for the future जो businesses हैं of that particular company, to look after the interest of that shareholders or the stakeholders of that company. Basically, we discuss about that the principal agent problem is there. The owners and the managers of the business organization can have conflict of interest, and basically the board of directors are there to protect and safeguard the interest of all the stakeholders of the business organization and especially the shareholders of the business organization. So they are important it is important to have the board of directors because they will act as watchdogs. They will safeguard the interest of those people who are unable to protect their interest, especially in case of Pakistan, जिसे हम पहले बात कर चुके हैं कि that there are minority shareholders, and for those minority shareholders, they are unable to protect their interests. So there should be someone in the organization who should control the opportunistic behavior of the managers so that the personal behavior or the personal preferences of the managers may not affect the overall performance of the business organization, and it may not damage the interest of all the stakeholders, especially the shareholders. And when we appoint the board of director, what should they have to be good? Why they should have to be good directors? What requires them to be good director? Number one is the suitability or the ability. Suitability or the ability basically means that when someone is being appointed at the board of directors, he must not only be suitable but also have the skills and the ability to serve at the board of directors. For example, you have appointed someone at the board of directors of any financial institution. For example, किसी बैंक का आपने किसी person को जो है वो board of directors के तौर पे appoint किया है, तो एक pre-req ये है कि that person must have the knowledge about the banking businesses. Because when we talk about the other types of the business organization, जो non-manufacturing concerns हैं, their regulation, their system, their nature of work is quite different from the financial institutions. Regulatory perspective भी different है. यहाँ SECP रेगुलेट कर रहा है, वहाँ पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जो आपका सेंट्रल बैंक है, स्टेट बैंक है, वो रेगुलेट कर रहा है. यहाँ पे आपके ऊपर इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स और इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो है ना वो एप्लीकेबल हैं. वहाँ पे स्टेट बैंक की प्रूडेंशियल रेगुलेशंस और बेसल अकॉर्ड की जो रेगुलेशंस हैं वो आपके ऊपर जो है ना एप्लीकेबल है. तो वो पर्सन जिसका साउंड बैकग्राउंड है या एक्सपर्टीज है उस पर्टिकुलर जो है ना वो एरिया से, उस टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से, ही और शी मस्ट बी टेकन ऑन बोर्ड.
तो अब ऐसा पर्सन जिसका बैंकिंग बिजनेस का एक्सपीरियंस ही नहीं है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का एक्सपीरियंस नहीं है, उसको अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में ले लेते हैं तो he is not a suitable person because he won't be having the ability to serve as a director on that particular board. Then character, obviously that person must have a good character. कोई ऑलरेडी किसी भी जो है ना मेल प्रैक्टिस के अंदर या किसी ऐसी एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से जो है ना वो ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन भी डैमेज हो और ऑर्गेनाइजेशन की जो है ना परफॉर्मेंस एट स्टेक हो जाए जो है ना. Then there are certain personal traits or views or attitudes that must be associated with that person. देखिए एटीट्यूड का ये है कि there are some people who are very risk takers and the other there could be certain people who are very risk averse. अब अगर ऐसे बंदे को ले लेते हैं जो बहुत ज्यादा जो है ना जिसका एटीट्यूड ये है कि हर चीज के अंदर जो है ना ही इज गोइंग फॉर रिस्क अवर्स एटीट्यूड जो है ना उसमें, तो बोर्ड के हर डिसीजन के अंदर जो है ना उसका पर्सपेक्टिव ये होगा कि पैसिव अप्रोच होगी कि हमें कुछ आगे वे फॉरवर्ड नहीं देखना चाहिए बल्कि क्या करना चाहिए, अवॉइड करनी चाहिए चीजों को जो है ना ताकि रिस्क हो. या इसी तरह से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि डोमिनेंट पर्सनैलिटी जो है ना वो रखते हैं. They try to impose their views on the other instead of listening to them, instead of coming up with a good idea, or instead of welcoming the good opinions, they try to enforce their own opinions and the ideas. तो अगर इस किस्म के लोग जो है ना बोर्ड के अंदर रख लेंगे तो बोर्ड की जो मीटिंग है या उसकी जो इफेक्टिवनेस है या वहाँ जो डिसीजन मेकिंग है वो नेगेटिवली जो है ना वो इफेक्ट होगी. एंड देन एन इम्पॉर्टेंट थिंग दैट विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू गिव टाइम. एक बंदे को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जो है ना वो आने का शौक तो बहुत है लेकिन वो टाइम नहीं दे पाते, मीटिंग नहीं अटेंड करते या प्रॉपरली जो है ना जो एजेंडा आइटम उनको सर्व किया जाता है उसको जो है ना थॉरली स्टडी करके नहीं आते, अपनी प्रॉपर इनपुट नहीं दे पाते, तो ऐसे बंदे को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में रखने की जरूरत नहीं है. इसी वजह से पहले कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर जो है ना ये इनिशियली ये कोई लिमिटेशन नहीं थे कि आप किसी भी कंपनी में कितनी कंपनीज के अंदर जो है ना वो सर्व कर सकते, तो एक बंदा 50 कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर भी हो सकता था. तो टेक्निकली स्पीकिंग अगर वो 50 कंपनीज को सर्व कर रहा है और नॉर्मल रूटीन के अंदर जो है ना वो तकरीबन 4 एक मीटिंग्स तो बोर्ड की होती हैं, क्वार्टरली मीटिंग जो है ना वो तकरीबन होनी चाहिए, तो ये 200 डेज तो मीटिंग के बन जाते हैं. तो हाउ कम इज इट पॉसिबल दैट ही वुड बी एबल टू अटेंड ईच एंड एवरी मीटिंग ऑफ एनी कंपनी. और फिर अगर वो मीटिंग अटेंड भी कर लेते हैं तो उसको कितनी इफेक्टिवली अटेंड करेंगे या उसके अंदर इनपुट कितनी इफेक्टिवली इंश्योर करेंगे, दैट्स अगेन अ क्वेश्चन जो है ना उसमें. तो उसको रिस्ट्रिक्ट करके कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस 2012 के अंदर जो है ना रिस्ट्रिक्ट करके उसको ले आए 10 कंपनीज में कि अ पर्सन कैन सर्व एज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन अ मैक्सिमम 10 जो है ना वो कंपनीज, नॉट मोर देन 10 कंपनीज इंक्लूडिंग द कंपनी जिसको जो है ना वो उसमें प्राइमरीली जिसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, मींस क्रॉस जो है ना डिफरेंट कंपनीज में मोर देन 10 नहीं होंगे. अब उसको लिमिट करके जो है ना वो 7 के ऊपर ले आया गया है कि अ पर्सन कैन सर्व एज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन अ मैक्सिमम 7 कंपनीज. तो अगर 7 कंपनीज में भी है मिनिमम तकरीबन 4 मीटिंग्स भी होती हैं तो पर ईयर तकरीबन सिर्फ 28 डेज होंगे, तो 12 मंथ्स में से अगर एक मंथ मीटिंग के लिए भी होता है मतलब अक्रॉस द बोर्ड थ्रू आउट द ईयर तो मैनेजेबल है, उसके अंदर जो है ना वो इफेक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं. सर इसमें कहीं ये बताइएगा कि जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैं उसमें ज़रा इंटरनल भी हैं एक्सटर्नल्स भी हैं. जी जी बिल्कुल तो ऐसे. इसके अंदर इफ दे आर गिवन द रिस्पांसिबिलिटी इन एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी जी जी and if they are unable to perform those tasks as assigned, so what penalty they can be given, or is it going to be the chairman who is going to give them the penalty? नहीं, पेनल्टी तो ये है कि ऑब्वियसली बात है कि उनको जो है ना वो अपनी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उनसे क्या कर दिया जाएगा, रिमूव कर लिया जाएगा. ठीक है, लेकिन अब उसका रिमूवल के प्रोसेस के अंदर भी सबसे बड़ा जो इशू ये है उसमें यह है कि जितनी वोट्स लेके अगर एक पर्सन इलेक्ट हुआ है एटलीस्ट उतनी वोट जरूर होनी चाहिए जिसकी बेसिस पे उससे ऊपर उसको क्या किया जाए, रिमूव किया जाए. मतलब ये नहीं है कि अदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसको जो है ना रिमूव कर सकते हैं या चेयरमैन रिमूव कर सकते हैं. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को किसने अपॉइंट किया था? ऑनर्स ने सर, कांग्रेस ने किया था, शेयर होल्डर्स ने. तो जब उनका Shareholders. रिमूवल भी होगा तो कौन उसको रिमूव करेंगे? शेयर होल्डर्स ही रिमूव करेंगे. ऑनर्स. और इंटरेस्टिंग उसमें बात यह है कि उसके रिमूवल के लिए भी आपको मिनिमम इतने वोट्स चाहिए जितने वोट्स लेके जो है ना वो क्या हुआ था, इलेक्ट हुए. और पाकिस्तान के केस में मेजॉरिटी तो यह है कि ऐसा होता है कि बिला मुकाबला ही जो है ना वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है ना वो इलेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि हम पहले भी इस चीज को डिस्कस कर चुके हैं कि जनरली ऐसा होता है कि जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं ज्यादातर डायरेक्टर्स उन्हीं के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं.
तो बाकी क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इंस्टीट्यूशनल जो इन्वेस्टर्स हैं उनका इतना रोल है ही नहीं, बहुत ही कम जो है ना वो उनकी इन्वेस्टमेंट है। अब देखें ना, एक कंपनी है उसके जो है ना बिलियंस जो है ना वो शेयर जो है ना वो इशू हुए हुए हैं, उसमें से अगर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास जो है ना वो फॉर एग्जांपल 1 मिलियन भी है, तो 1 मिलियन आउट ऑफ दैट बिलियन जो है ना वो शेयर्स बिल्कुल नॉमिनल सी परसेंटेज बनती है। तो दे आर लीस्ट कंसर्न अबाउट दिस थिंग दैट दे हैव अ रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्टर ऑन द बोर्ड। उसके अलावा जितने डायरेक्टर्स जो शेयर होल्डर्स हैं, जो पहले भी हम बात कर चुके थे शेयर होल्डर एक्टिविज्म की, कि दे हैव दिस फीलिंग कि हमारे वोट देने या देने से क्या फर्क पड़ेगा, तो जब वोट देने से फर्क ही नहीं पड़ना तो हमें वोट दे के हमने क्या करना है, तो वोट दे ही ना। तो इस कल्चर की वजह से होता गया है कि मेजोरिटी जो बोर्ड है वो मेजोरिटी शेयर होल्डर्स का ही जो है ना वो अपॉइंटेड आ जाता है। तो अब उस सिचुएशन के अंदर तो मेजोरिटी नहीं, क्योंकि जो है ना मेजोरिटी जो शेयर होल्डर्स हैं, जो फैमिली ओन जो कंपनी है उसमें उस फैमिली ने ही उसको जो है ना अपॉइंट किया हुआ है, तो वो फैमिली ही क्या करती है, उसको जो है ना वो रिमूव कर सकती है। अदर देन दैट अगर प्योर उस सिस्टम के अंदर चले जाएं तो ये उसकी जो रिमूवल है इट्स क्वाइट जो है ना वो डिफिकल्ट टास्क। वंस अ पर्सन इज टेकन ऑन बोर्ड, तो अब उसको रिमूव करने के लिए भी एटलीस्ट उतने वोट चाहिए जितने पे जो है ना उसको क्या किया गया था, इलेक्ट किया गया है। हाँ, अब ये है कि अब जाहिर सी बात है, जिस तरह रूटीन के अंदर ये होता है कि एक एम्प्लॉय अपनी जो है ना वो सर्विसेज या चीज़ों को जो है ना वो नहीं फुलफिल कर रहा, तो उसके अगेंस्ट उसको जो है ना वो वार्निंग लेटर या उसको जो है ना वो स्ट्रिक्ट जो है ना कोई उसके अगेंस्ट जो है ना एक्शन लिया जा सकता है, तो दैट इज पॉसिबल। बट रिमूवल फ्रॉम द बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर इज नॉट पॉसिबल। जी क्वेश्चन साहब। सर सॉरी, मैं इररिलेवेंट हो रहा हूँ थोड़ा सा। ये रिकॉर्डिंग का मेरी रिक्वेस्ट थी कि अगर हो जाए। अच्छा, आई एम सॉरी, आई जस्ट फॉरगॉट अबाउट इट। नहीं, रिकॉर्डिंग चल रही सॉरी है, सर। रिकॉर्डिंग होगी। रिकॉर्डिंग चल चल अच्छा, ठीक है। अच्छा, बस ठीक है सर, सॉरी मैंने आपको इंटरप्ट किया। नहीं नहीं, कोई इशू नहीं है जो उसमें। अच्छा जी। सर इधर मैं एक चीज ऐड ऑन करना चाहूंगा सर रिगार्डिंग जी प्लीज। ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और उनकी अगर कोई इनकॉम्पिटेंसी होती है सर। जी जी। सर ये एक 2008 में ये पब्लिक लिमिटेड ही मतलब पब्लिक कंपनी ही हमारी स्टील मिल आ जाती है जो पाकिस्तान स्टील है सर। वो उस वक्त सबको पता है कि मतलब बहुत प्रॉफिट में जा रही थी और कितने बिलियन मुझे एग्जैक्टली नहीं पता उसने अर्न किया था। फिर गवर्नमेंट चेंज हुई तो उसके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे उस वक्त उनकी ही लाइक मैल इंटेंशंस की वजह से या जो भी उन्होंने किया वो लॉस में जाना शुरू हो गई और स्टील मिल के इंटरेस्ट को इस हद तक नुकसान पहुंचाया गया कि एट द एंड वो बंद हो गई, बैंकरप्ट हो गई सर। ठीक है। अगर सर इस तरह की सिचुएशन किसी लाइक लिमिटेड कंपनी के अंदर हो जाती है जहां पे एक डायरेक्टर है जो परफॉर्म नहीं कर रहा है, उसके कोई मेलाफाइड इंटेंशंस हैं, तो अगर तो सर उसको स्टेक होल्डर्स ने चेंज करना है या शेयर होल्डर ने चेंज करना है तो तब तक तो वो शायद कंपनी को लेके डूब जाएगा। तो एज अ मिड टर्म चेक सर क्या मेजर्स होते हैं कि एक बोर्ड ऑफ एक डायरेक्टर की परफॉर्मेंस को कंट्रोल भी किया जा सके और मेजर भी किया जा सके, इस पे थोड़ा गाइड करते हैं सर। उसमें ये है ना कि देखें, एक तो ये है कि इट्स नॉट नेसेसरी आप जो है ना वो स्पेशल एजीएम कॉल कर सकते हैं और उसको जो है ना वो ये एक्शन ले सकते हैं। इट्स नॉट रिक्वायर्ड कि जी कि वो आपको 2 साल या 3 साल वेट करना है और उसके बाद एक्शन लेंगे। एक तो नॉर्मल आपकी जो एनुअल जनरल मीटिंग हो रही है, अगर वो ड्यू है तो आप उसके अंदर इस एजेंडा को टेकअप कर सकते हैं, नहीं है तो स्पेशल एजीएम कॉल करके और ये एक्शन जो है ना वो लिया जा सकता है। सेकेंडली, जनरली ऐसा होता है कि जो बोर्ड का जो फंक्शन है वो बेसिकली सुपरवाइजरी जो है ना वो रोल होता है। बोर्ड डायरेक्टली जो है ना वो मैनेजमेंट को नहीं लुक आफ्टर जो है ना मैनेजरियल अफेयर्स को नहीं कर रहा होता है। ओनली जो है ना जो एग्जेक्टिव आपके डायरेक्टर्स हैं वो उस पार्ट के अंदर जो है ना इन्वॉल्व होते हैं। तो अब उनको, अगर पहली तो बात यह है कि किसी स्पेसिफिक एक पर्सन के ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जनरली बोर्ड के अंदर भी डिफरेंट कमेटीज होती हैं जो डिफरेंट चीजों चीजों को लुक आफ्टर कर रहे होते हैं। तो एक पर्सन की नेग्लिजेंस जो है ना वो पूरी की पूरा जो है ना उस टास्क को शायद डायरेक्टली इफेक्ट नहीं कर रही होती, क्योंकि सारा टास्क जो है ना वो सिर्फ एक पर्सन तक कन्फाइंड नहीं है। सेकेंडली ये है कि अगर एग्जेक्टिव डायरेक्टर है और अपनी ड्यूटीज को जो है ना वो फुलफिल नहीं कर रहा जो है ना उसमें, तो एज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो जो है ना उसका रिमूवल थोड़ा सा जो है ना वो डिफरेंट है, लेकिन एज अ मैनेजमेंट या एज अ पार्ट ऑफ द एम्प्लॉई उसके अगेंस्ट जो है ना जो भी स्फीयर एक्शंस है वो तो सारी आपके पास पॉसिबिलिटीज अवेलेबल है। और जैसे मैंने कहा कि आप स्पेशल एजीएम कॉल करके अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से भी जो है ना उसको करना चाहते हैं तो वो उसको एलिमिनेट कर सकते हैं जो है ना, उसमें कोई ऐसा जो है ना वो इशू नहीं है। असल प्रॉब्लम ये है कि आगे चल के इसमें ये डिस्कस भी करेंगे कि सबसे बड़ा जो इशू आता है वो ये है कि हम यहाँ पे जो प्रॉब्लम आ रहा है वो सबसे बड़ा ये है कि बोर्ड ही एक्चुअली उस तरह से परफॉर्म कर रहा है जिस तरह उसको जो है ना वो चाहते हैं।
तो यहाँ तो इंडिपेंडेंस नहीं इंश्योर होने दी जाती जो है ना, बाकी काम तो जो है ना वो डिफरेंट एक पर्सपेक्टिव के अंदर रह जाते। तो जो उसके लीगल भी जो है ना वो पर्सपेक्टिव्स अवेलेबल हैं कि उसके जो है ना स्किल केयर या ड्यूटी अगर प्रॉपरली परफॉर्म नहीं करता तो उसके अगेंस्ट जो है ना उसको, अगर उसकी मैलिफाइड इंटेंशन है या कोई इनअप्रोप्रिएट है तो एक स्ट्रिक्ट जो है ना वो एक्शन लिया जा सकता है, और उसमें जो एक्शन है वो, आई थिंक सॉरी ये कोई उसमें इशू है जो है ना उसमें। ओके जी, स्किल एंड केयर ड्यूटी, डू नॉट एग्री टू बी अ डायरेक्टर इफ यू आर नॉट फिट टू बी अ डायरेक्टर जो है ना, ये पर्सनल पर्सपेक्टिव में है कि फॉर एग्जांपल इफ समवन इज बीइंग ऑफर्ड टू बिकम द डायरेक्टर ऑफ एनी कंपनी एंड ही और शी फील्स it deems it that he or she is not appropriate to become the director, तो उस डायरेक्टरशिप को जो है ना नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए जो है ना उसमें। Second is must have the necessary knowledge, skill and background / experience that is reasonably expected of a director of a particular company। वो जो पहले भी हम लोगों ने बात की थी कि उसके रिलेटेड जो स्किल्स हैं या उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री से रिक्वायर्ड जो है ना जो आपकी एक्सपीरियंस है, अगर वो है तो उसमें जो है ना एज ए डायरेक्टर जो है ना उसको ज्वाइन करें, अदरवाइज उसको ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। Should exercise the degree of care, caution and skill that can reasonably expected from them as directors। अब वो जो पर्सपेक्टिव भी बात आप कर रहे हैं कि एक बंदा नेग्लिजेंस जो है ना उसके हो जाती है जो है ना उसमें, तो अगर उसने वो प्रोसेस अपना जो है ना वो ठीक किया हुआ है, अपने तौर पे जो है ना वो रीजनेबल केयर की हुई है। फॉर एग्जांपल एक कंपनी की इन्वेस्टमेंट थी और डिफरेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को देख के जो है ना उसको जो है वो उन्होंने क्या किया, किसी पर्टिकुलर जो है वो सिक्योरिटी के अंदर इन्वेस्ट कर दिया, जैसे फॉर एग्जांपल स्टॉक मार्केट में उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया। तो उन्होंने अपने पर्सपेक्टिव से जो अवेलेबल ऑप्शंस थी उनको एवेल्युएट किया, उनमें से जो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन अवेलेबल उस टाइम थी वो स्टॉक मार्केट ही, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया और लेटर ऑन ऐसा हुआ स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई। अब ये जो पैसा जो डूब रहा है जो है ना उसमें, अब उसमें उनका जो है ना वो कसूर इस वजह से नहीं है क्योंकि जो नॉर्मल जो प्रोसीजर था, जो रिक्वायरमेंट थी उसको उन्होंने जो है ना वो परफॉर्म किया है। अब कुछ अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स की वजह से अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैन नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। फॉर एग्जांपल इसमें आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि ऐसी सिचुएशन हुई कि ये तकरीबन अर्ली 2000s के अंदर जो है ना ये हुआ कि अस्करी जो सीमेंट है इसको जो लॉन्च करने के लिए जो है ना वो डिसाइड किया गया जो है ना, तो उसमें ये था कि ये अफगान वॉर की वजह से जो है ना अफगानिस्तान में भी काफी जो है ना वो डैमेज हुआ था, तो उसकी रिकंस्ट्रक्शन रिहेबिलिटेशन जो है ना स्टार्ट हुई। लोकल इंडस्ट्री भी जो थी रियल एस्टेट की वो ग्रो कर रही थी, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री काफी ग्रो कर रही थी, तो सीमेंट की यूटिलाइजेशन का पोटेंशियल जो है वो काफी ज्यादा था। तो AWT में ये डिसाइड किया गया कि जी कि हम ऐसा से करते हैं कि एक सीमेंट प्लांट को जो है ना वो स्टार्ट करते हैं जो है ना, तो उस टाइम पे तकरीबन ये 7 अरब के करीब जो 7 बिलियन की जो है ना वो इन्वेस्टमेंट थी, तो उसको इनिशिएट कर दिया गया प्रोजेक्ट। अब सीमेंट प्लांट की, ठीक है, उसकी प्रोक्योरमेंट से लेके उसको ऑपरेशनल होने तक अराउंड जो है ना वो 3 इयर्स का जो है ना वो टाइम रिक्वायर्ड होता है। अब ड्यूरिंग दैट 3 ईयर टाइम, जैसे ये मार्केट में अपॉर्चुनिटी सीख कर रहे थे तो बहुत सारे और प्लेयर भी जो है ना वो मार्केट के अंदर इसी किस्म की जो है ना वो मार्केट अपॉर्चुनिटी उन्होंने सीख किया, और तकरीबन 10 से 11 जो है ना नए सीमेंट प्लांट जो है ना वो आ गए, और कुछ एग्जिस्टिंग ने अपनी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको इंक्रीज करके मार्केट शेयर को ग्रैब करना शुरू कर दिया। तो जब ये प्लांट जो है ना ऑपरेशनल हुआ उस टाइम पे जो मार्केट डायनामिक्स थे वो टोटली जो है ना वो चेंज हो गए। उन मार्केट डायनामिक्स के चेंज होने की वजह से वो जो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट थी वो स्टेक के ऊपर आ गई। अब यहाँ पे सारे का सारा जो नजला है वो किसके ऊपर चला जाना है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर, कि आप लोगों ने ऐसा डिसीजन किया, आप लोगों ने ऐसी इन्वेस्टमेंट को अप्रूव किया जिसकी वजह से कंपनी जो है ना इतने बड़े जो है ना वो उसकी इन्वेस्टमेंट जो है ना वो ब्लॉक होगी। लेकिन उसको रिस्पॉन्सिबल इस वजह से नहीं किया जा सकता कि जो मार्केट डायनामिक्स थे जिस टाइम पे ये डिसाइड किया गया वो सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट थी, ऑल टुगेदर थी उससे जो कि अभी जो है ना सिचुएशन होगी। तो क्योंकि फ्यूचर तो अनसर्टेन है, अनकंट्रोलेबल है, तो इस वजह से ऐसी सिचुएशन जो है वो अगर आपकी फेवर में चली जाती है तो जाहिर सी बात है कि हर कोई यही कहता है जी कि ठीक है जी बहुत अच्छा डिसीजन है, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता वो रिवर्स हो जाती है तो फिर उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना वो हर कोई ब्लेम करना शुरू कर देता है। तो अगर ड्यू केयर की गई है, प्रॉपर उसका होमवर्क या बैकग्राउंड वर्किंग की गई है और उसकी बेसिस के ऊपर डिसीजन हुआ है, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि डिसीजन के रिजल्ट जो हैं या कॉन्सिक्वेंसेज गलत ही हो जाएं, बट स्टिल दे वोंट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। रीजन बीइंग कि उन्होंने अपना काम ठीक परफॉर्म किया था, आगे उसका जो एंड रिजल्ट है वो उसके उनके अपने कंट्रोल के अंदर नहीं है।
लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन है जैसे एनरॉन का स्कैंडल, आप लोगों को बहुत सारे लोगों ने जो है ना वो सुना होगा कि उसके अंदर जो है ना अपने ही बोनसेस और पर्क्स और बेनिफिट्स को इंक्रीज करने के लिए, पर्क्स और बेनिफिट्स को इंक्रीज करने के लिए दे यूज मैलिफाइड इंटेंशंस। तो उस सिचुएशन के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वर डायरेक्टली हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस थिंग, कि सिर्फ पर्सनल इंटरेस्ट को जो है ना उनके प्रिवेल कर रहे थे जो ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट पे, जिसकी वजह से कंपनी का डाउनफॉल भी हुआ और कंपनी बैंकरप्सी की तरफ भी चलेगी। तो यस, देन दे वुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर इट जो है। ओके जी, डायरेक्टर्स लायबिलिटी। Interestingly, the directors are only responsible or accountable to the shareholders, not to the outsiders. Despite of the fact that we say that the board of directors are responsible to take care the interest of all the stakeholders of the business organization, but yet they are only responsible or they are only accountable to the shareholders. Shareholders सिर्फ उनको account कर सकते हैं, जैसे भी हमने कहा कि appointment भी shareholder करेंगे, removal भी shareholder करेंगे। अगर for example lenders के interest जो है वो affect होते हैं, तो लेंडर्स कैन नॉट डू एनीथिंग अगेंस्ट देम जो है ना। ठीक है, लीगली उस कंपनी के अगेंस्ट जो भी एक्शन लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, बट डायरेक्टली दे कैन नॉट होल्ड एनी डायरेक्टर जो है ना वो अकाउंटेबल फॉर द एक्शन दैट मे अफेक्ट देयर सिचुएशन। ओनली इफ दे आर प्रूव टू बी नेग्लिजेंट और अ विलफुल पार्टी टू फ्रॉड। ये भी जो हम बात कर रहे थे कि अगर उन्होंने अपने तौर पे ड्यू केयर की है, उस सारे प्रोसेस को अच्छे तरीके से जो है ना वो परफॉर्म किया है, कॉन्सिक्वेंसेज अगर गलत हो गए तो फिर उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर जो है ना कोई नेग्लिजेंस उनके पार्ट के ऊपर प्रूव होती है, या अगर उनके जो है ना वो फ्रॉडुलेंट कोई एक्टिविटी में होते हैं, तो फिर उनके अगेंस्ट जो है ना एक्शन लिया जा सकता है। और वो एक्शन ये भी है कि ऑब्वियसली बात है कि उनकी जो है ना कोई पेनल्टी उनके ऊपर जो है ना वो इम्पोज की जा सकती है, उनको कोई जो है ना वार्निंग लेटर वगैरह जो है ना वो दिया जा सकता है, और सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस के अंदर जो है ना एक सीरियस एक्शन के तौर पे जो है ना उनका रिमूवल भी हो सकता है जो ना। If not negligent or willful party or to a fraud, directors are generally covered by the company. तो ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, क्योंकि दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू एनीवन एल्स टू और आंसरेबल टू एनीवन एल्स। तो अगर बाकी वो फ्रॉड में नहीं है इन्वॉल्व, या कोई बहुत उनसे जो है ना बड़ी कोई नेग्लिजेंस नहीं हुई, तो जनरली कंपनी ही क्या करती है, उनको कवर करती है। और मजे की बात यह है कि जैसे ये बैंक के अंदर कैशियर्स होते हैं ना, तो कैशियर्स की जो है ना वो इंश्योरेंस जो है ना वो करवाई जाती है जो है ना उसमें। इसी तरीके से जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, उन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के भी बिहाफ पे जो है ना वो इंश्योरेंस करवाई जाती है जो है ना उसमें, ताकि उनके बिहाफ पे अगर कोई कंपनी को लॉस होता है तो उस लॉस को क्या कर दिया जाए, कवर कर दिया। ये लास्ट पॉइंट में लिखा भी है, कंपनीज में ऑब्टेन इंश्योरेंस फॉर लाइबिलिटी ऑफ डायरेक्टर्स, कि जितनी जो है वो उन्होंने जो है ना वो लायबल हैं उसको पे करने के लिए, उसके अगेंस्ट जो है ना वो इंश्योरेंस जो है ना वो कवर ले ले जो है ना उसमें। एंड फॉर लॉसेस अराइजिंग फ्रॉम दी डायरेक्टर्स जो है ना, तो जैसे कंपनी में फायर इंश्योरेंस होती है, कंपनी में जो है ना हेल्थ इंश्योरेंस कराई जाती है, बिल्कुल इसी तरह से कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उनकी भी इंश्योरेंस करवा ली जाती है फॉर लाइबिलिटी ऑफ डायरेक्टर्स, कि जिस चीज के वो लायबल होंगे उसके अगेंस्ट जो है ना वो कर लें। तो उसमें तो सिंपली ये होता है कि लाइबिलिटी ऑफ डायरेक्टर्स तो कवर इस तरह से हो जाती है कि जितने भी डायरेक्टर्स ने जो शेयर्स एक्वायर किए होते हैं, उस हद तक वो लिमिटेड लाइबिलिटी के अगेंस्ट जो है ना रिस्पॉन्सिबल है। तो जनरली होता है कि शेयर्स की बाइंग के टाइम ही जो है ना उसकी पेमेंट कर दी जाती है, तो उसका तो लीगल कवर उसी टाइम पे ही आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप किसी कंपनी के शेयर्स परचेज करते हैं, 1 मिलियन के शेयर्स परचेज किए हैं, तो एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ शेयर्स ही 1 मिलियन आप कंपनी को पे कर देंगे। तो जब वो अमाउंट ऑलरेडी आपने पे कर दी है, तो उसकी तो कवरेज ऑलरेडी होगी कि अगर लॉस होता है तो ये पैसा कंपनी जो है ना वो ऑलरेडी आपसे ले चुकी है, ये आपके बिहाफ पे इस लॉस को जो है ना कवर कर दिया जाएगा। लेकिन अगर कुछ लॉसेस हो जाते हैं, जैसे अभी ये बात हो रही थी स्टील में लिया इस तरह की, तो अगर डायरेक्टर्स की इंश्योरेंस करवा ली जाए कि उनके जो है ना उस वर्क की वजह से या उनके किसी डिसीजन की वजह से लॉसेस हुए हैं, तो येट दोज लॉसेस कैन बी कवर्ड थ्रू दी इंश्योरेंस जो है ना उसमें। तो ये भी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है। तो अब जब आपने उनको ये कवर दे दिया इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू, तो ऑटोमेटिकली ये जो पॉइंट था कि अगर बिलफुल वो पार्टी नहीं है फ्रॉड में, तो ऑटोमेटिकली कंपनी ने क्या कर दिया, उनको कवर कर दिया, कि डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि उनकी वजह से नुकसान हुआ भी है, बट दैट लॉस इज बीइंग टेकन केयर बाय द इंश्योरेंस कंपनी। तो डायरेक्टर्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, उनके अगेंस्ट कोई लीगल कॉन्सिक्वेंसेज नहीं होने लगे। सर वो उस जी जी। इंश्योरेंस के लिए पे कौन करेगा सर?
इंश्योरेंस के लिए पे कौन करेगा जो है ना, उसमें इंश्योरेंस प्रीमियम कंपनी करेगी ना। जैसे फायर इंश्योरेंस होती है तो फायर इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस है एम्प्लॉइज की, नहीं नहीं, उसकी जो वो होती है इंस्टॉलमेंट्स वगैरह, प्रीमियम वगैरह जो तो होता है वो कौन? जी सर, प्रीमियम। उसका कवर जो है ना वो कंपनी लेगी ना, कंपनी पे करेगी जो है ना उसमें। देखे ना, एक सिंपल सी बात है, एक ओके ओके सर। इसको दूसरे पर्सपेक्टिव में देखें। आपको कंपनी कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के तौर पे हायर करती है और आपको ये बोला जाता है कि अगर बोर्ड के किसी डिसीजन की वजह से कुछ गड़बड़ होगी तो सारी के सारे कॉन्सिक्वेंसेस के आप जिम्मेदार होंगे। तो आप कहेंगे भाई मुझे क्या जरूरत पड़ी है कि अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कोई डिसीजन गलत हो गया या उस कमेटी का डिसीजन या रिकमेंडेशन गलत होगी जिसमें मैं भी पार्ट हुआ और उसकी वजह से बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान हो गया, तो मैं क्यों उस चीज का हिस्सा बनूं या मैं क्यों उस लॉस को बियर करूं? तो आप तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जाने के लिए रेडी नहीं होने लगे। ऐसी है ना। तो ठीक है, जहां पे आप विलफुल हैं, आप फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, वो तो चले एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन जहां आपकी नेग्लिजेंस से नहीं हो रहा, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम हो गया वहां पे आप भी ये चाहेंगे कि कंपनी आपको क्या करे, सेफ गार्ड करे। तो उस सिचुएशन के अंदर उस कवर देने के लिए जो है ना वो कंपनी क्या कर रही है, इस चीज को जो है ना वो टेक केयर कर रही है। तो अब दोनों साइड, इट्स अ टू एज सॉर्ड। एक साइड पे जो है ना उनकी नेग्लिजेंस उसको कवर भी दे रहे हैं और दूसरी साइड पे ये भी उनको जो है ना वो सेफ गार्ड कर रहे हैं कि आप जो है ना वो आके और उस चीज को परफॉर्म करें। हाँ, अगर आपकी नेग्लिजेंस नहीं होगी तो आपको रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया जाएगा, लेकिन अगर नेग्लिजेंट हुए तो उस सूरत में जो है ना वो कॉन्सिक्वेंसेस के आप जो है ना जिम्मेदार हैं। सर इसमें एक और एस्पेक्ट भी है, जैसे जनरली जितनी भी कंपनीज हैं दे ट्राई टू रजिस्टर देमसेल्फ विद द इंश्योरेंस, जी जी। और अगर उस सूरत में करते हैं एज ए कंपनी जो है वो इंश्योरेंस उसकी लेते हैं, देन फर्दर जो है उनके डायरेक्टर्स की भी फिर रिक्वायरमेंट होगी उस सूरत में, या उसमें जरूरत नहीं है? नहीं, देखिए अब इंश्योरेंस डिफरेंट हो सकती है ना। फॉर एग्जांपल आपने फायर इंश्योरेंस करवाई हुई है, तो फायर इंश्योरेंस के ताल्लुक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ तो नहीं है जो है ना। ठीक है, तो वो तो एक आपने अपनी सेफ्टी के लिए जो है ना उस चीज को जो है ना वो कराया हुआ है। या फॉर एग्जांपल आपने हेल्थ इंश्योरेंस कराई है एम्प्लॉइज की, तो हेल्थ इंश्योरेंस ठीक है, सारे एम्प्लॉइज हैं उसके अंदर, जो आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं उनको भी ऑप्शन आपने दे दी। ये इसका जो ये जो इंश्योरेंस है ये डिफरेंट है। ये इंश्योरेंस आप करा रहे हैं उनकी उस लॉसेस के अगेंस्ट जो कि होते हैं। नॉर्मली में कुछ एम्प्लॉइज की भी करवाई जाती है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी ना कि बैंक के अंदर जो कैशियर होता है उस कैशियर की भी जो है ना वो इंश्योरेंस करवाई जाती है। ठीक है, कि अब फॉर इंस्टेंस ऐसा होता है कि सम टाइम पेमेंट करते हुए या पेमेंट रिसीव करते हुए विलफुली नहीं, ठीक है, अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता है कि उसमें से जो पेमेंट में कोई प्लस माइनस हो गया। ठीक है, अब वो पेमेंट करते हुए गलती से जो है ना पेमेंट ज्यादा कर दी, या पेमेंट जो है ना उसमें उसकी तरफ से जो है ना वो जितनी होनी चाहिए थी उससे ज्यादा होगी। अब ये लॉस कौन बियर करेगा? एक तो तरीकाकार ये आसान सा कि आप उसको कैशियर को कहते हैं जी जो भी बैलेंस में डिफरेंस है इसको जो है ना वो पूरा करो। लेकिन अगर वो बैलेंस में डिफरेंस बहुत ज्यादा हो जाता है किसी भी वजह से, चेक आप इशू कर रहे थे, वो चेक के अगेंस्ट जो है ना वो पेमेंट करनी थी, कोई बड़ी पेमेंट थी, उसमें उनसे गलती होगी और वो कैशियर बेचारा वैसे ही जो है ना 15,000 की नौकरी कर रहा है, उसके पास कोई एसेट्स भी नहीं है, कोई और चीज भी नहीं है, तो वो तो कहेगा ठीक है जो है ना मुझे भेजना है, जेल भेज दें जो है ना, मैं तो और कुछ भी नहीं कर सकता। तो उस चीज को जो है ना वो करने के लिए क्या किया जाता है कि उसकी इंश्योरेंस करवा ली जाती है। तो जैसे यहाँ पे एक एम्प्लॉय की इंश्योरेंस हो रही है, बिल्कुल उसी तरीके से जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उसमें एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की भी जो है ना वो आपने जो आपके जितने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनकी भी आप इंश्योरेंस करवा लेते हैं। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट ये है कि अगर तो वो उनकी गलती से हो रहा है या उनकी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी से हो रहा है तो दे वुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। लेकिन अगर उनकी नेग्लिजेंस से नहीं हो रहा, उन्होंने ड्यू केयर की हुई है और फिर भी नुकसान हो गया, तो अब इस सिचुएशन के अंदर उनको कुछ ना कुछ तो आपने कुशन देना है ना, या कवर देना है। तो वो कहाँ से मिलेगा? उसको कवर करने के लिए एक ही तरीका है कि कंपनी अपने पास से उस लॉस को बियर करे। दूसरा ये है कि वो थर्ड पार्टी को ट्रांसफर कर दे। तो नॉर्मली ये होता है कि आप क्या करते हैं, रिस्क असेसमेंट करते हैं। उस रिस्क असेसमेंट के अंदर ये है कि कॉस्ट बेनिफिट बेसिकली एनालिसिस किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक सिंपल सी एग्जांपल दे देता हूँ कि जनरली ये बिलीव किया जाता है अगर कि कंपनी के अंदर या बिजनेस के अंदर एक या दो कार्स हैं आपके पास, तो अब बेहतर ये है कि उनकी आप क्या कर लें, इंश्योरेंस करवा लें। इस वजह से कि उस एक गाड़ी के ऊपर या दो गाड़ियों के ऊपर जो आपने प्रीमियम देना है उसकी अमाउंट इतनी नहीं बनेगी कि अगर वो एक गाड़ी चोरी हो जाती है तो जितना आपका नुकसान होगा। ऐसी है।
यस सर। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल ये एक्सीड कर जाता है नंबर 20 से, कि 20 से जो है ना वो ज्यादा जो है ना वो कार्स आपकी जो है ना वो कंपनी के अंदर हैं, तो अब ये शायद आपके लिए रीजनेबल ना हो उस इंश्योरेंस को एक्वायर करना, क्योंकि 20 या 25 या 30 गाड़ियों के ऊपर जितना आप इंश्योरेंस प्रीमियम दे रहे हैं, तो वो इंश्योरेंस प्रीमियम ही शायद एक गाड़ी की चोरी होने से जो है ना वो ज्यादा होगा। तो वहां आपके लिए ज्यादा इफेक्टिव ये है कि आप क्या करें कि इंश्योरेंस को जो है ना एक्वायर करने की बजाय इसी तरीके से जो है ना उसको चलते रहे। So the same is true for the company, that what they have to do is they have to do the cost benefit analysis. If the company thinks कि हमें कोई इतना बड़ा मेजर लॉस नहीं हो सकता बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के, अगर फ्रॉड या नेग्लिजेंस भी होता है तो वी कैन कैरी दैट लॉस, वी कैन बियर दैट लॉस, दे कैन मूव विद इट। बट द मोस्ट अप्रोप्रिएट या रैशनल डिसीजन ये है कि आप उस लॉस को कवर करने के लिए एक सेफ गार्ड जो है ना वो कुशन ले लें, कि इंश्योरेंस उनकी करवा लें कि इन केस अगर कोई लॉस हो जाता है जिसमें वो फ्रॉडुलेंट नहीं है, लेकिन उनकी जो है ना, ठीक है, विलफुल जो है ना वो फ्रॉड या विलफुल इंटेंशन की वजह से नहीं है, लेकिन अनइंटेंशनली जो है ना वो लॉस हो गया, तो सूरत में जो है ना वो कंपनी मेजर लॉस से जो है ना वो बच जाए। सर एक छोटी सी क्लैरिफिकेशन चाहिए थी। जी जी प्लीज। ये जो आखिरी पॉइंट था सर, ये कंपनीज में ऑब्टेन इंश्योरेंस, दैट इज लायबिलिटी ऑफ डायरेक्टर्स एंड लॉसेस अराइजिंग फ्रॉम द डायरेक्टर्स। इसमें सर क्या डिफरेंस है कि क्या उनकी ज्यूरिसडिक्शन की बात हो रही है कि लायबिलिटी से नहीं और लॉसेस से? क्या नहीं, लायबिलिटी ऑफ डायरेक्टर्स का मतलब ये है कि जो हमने कंपनीज में कहा था कि लिमिटेड लायबिलिटीज होती हैं, तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उनके पास भी कंपनी के शेयर्स होते हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ शेयर जरूर होते हैं। तो अब एज अ लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, उसकी लायबिलिटी क्या होगी, अप टू द लिमिट, अप टू द इन्वेस्टमेंट दे हैव मेड इन द शेयर्स ऑफ द कंपनी, जितनी अमाउंट के उन्होंने शेयर्स परचेज किए हैं वो उस हद तक क्या है, लायबल है जो है ना उसमें। तो अब यहाँ तो उनके पास एक कवर आ गया कि जी कि जितनी उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है वो कंपनी के पास वो फंड्स अवेलेबल हैं, उन फंड्स को जो है ना वो उसके अगेंस्ट एक कुशन कंपनी के पास आ गया जी कि उनको यूज कर सकती है कि अगर इनकेस डिफॉल्ट होता है तो ये कंपनी के पास जो है ना, ठीक है, उनकी जितनी भी लायबिलिटी बनती है, जितना उनके एंड के ऊपर बनता है कि जी के इस लॉस को बियर करना है, उसको कंपनी कवर कर लेती है। लेकिन जितने उनकी डिसीजंस की वजह से लॉसेस हो सकते हैं, तो वो लॉसेस की तो पेमेंट आप डायरेक्टर से नहीं रखा सकते ना, कि आप पहले ही कहें जी कि हाँ जी देखें आपके आने से हो सकता है 50 करोड़ का लॉस हो जाए, तो 50 करोड़ हमें जो है ना आप गारंटी के तौर पे दें, तब हम आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में रखते हैं। तो इस सूरत के अंदर तो कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में नहीं आएगा। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या करती है कंपनी कि वो जो उनसे एक्सपेक्टेड लॉसेस हो सकते हैं, उन लॉसेस का भी कवर है। तो लाइबिलिटी का मतलब ये है कि जितनी उनकी इन्वेस्टमेंट है उसको एज अ गारंटी जो है ना उन्होंने इंश्योर करना है, और लॉसेस क्या ये है कि जो उनके डिसीजंस की वजह से या किसी भी वजह से कंपनी को लॉस हो सकता है, उस लॉस को जो है ना कवर करने के लिए जो है ना इंश्योरेंस कर रहे हैं। थैंक यू सर। वेलकम जी। ओके जी, मूविंग फॉरवर्ड, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द डायरेक्टर्स, एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। ये तो हम काफी दफा डिस्कस कर चुके हैं जी, आप लोग बताएंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। सर एग्जेक्टिव्स होते हैं सर मैनेजमेंट में इन्वॉल्व होते हैं, और नॉन एग्जीक्यूटिव होते हैं जो मैनेजमेंट में इन्वॉल्व नहीं होते एक्टिविटीज में कंपनी की। Very right. Those people who are directly involved in the management of the company are the executive directors, and the directors who are not directly involved in the management of the company or the different affairs of the business organization are called as non-executive director. For example, अगर कंपनी के जो मार्केटिंग मैनेजर हैं वो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर हैं, तो ही और शी वुड बी कंसिडर्ड एज एन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। इसी तरह से अगर एचआर मैनेजर हैं या डायरेक्टर एचआर हैं, वो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर है, तो ही वुड बी और शी वुड बी कंसिडर्ड एज एन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, क्योंकि वो जो मैनेजमेंट के जो डिफरेंट अफेयर्स हैं, जो उसकी मार्केटिंग फंक्शन है या एचआर फंक्शन है, उसको भी लुक आफ्टर कर रहे हैं, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर भी हैं जो उसमें। देन देयर आर रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्टर्स एंड नॉन रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्टर्स और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। इनके अंदर क्या फर्क है? जी, any idea about it? What is the difference between representative and independent directors? सर रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्टर्स जो कि किसी कंपनी की बिहाफ पर काम कर रहे होते हैं, और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जिनकी अपनी कंपनी होती है प्रॉब्ली। नहीं, पहली वाली बात आपने ठीक की है, दूसरा थोड़ा सा जो है ना वो उसमें है डिफरेंस।
रिप्रेजेंटेटिव की तो बात ठीक है, दे आर रिप्रेजेंटिंग समवन, ठीक है, दे आर सर्विंग ऑन द बोर्ड टू टेक केयर ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ ए स्पेसिफिक शेयर होल्डर जो है ना, और